हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप देख सकें। हमारा जो चैप्टर चल रहा था अभी पीछे हमने कराया है लाइफ प्रोसेसेस के वीडियो, कुछ देखेंगे आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उसके बेस पे ही हम कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। ये आपकी वर्कशीट नंबर 31 है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 जो चल रहा है उसी की हम अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं पूरी डिटेल में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये। प्रैक्टिस क्वेश्चन वैसे तो आप करेंगे खुद, मैं आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है आप कमेंट्स में इसके आंसर भी लिख के दें मेरे को। जो आप वीडियो देखेंगे तो इसके कमेंट्स में आप इनके आंसर लिख के दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हेल्प हो सके। तो आपके इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं, इसको मैं 2 पार्ट से बनाऊंगा वीडियो। अभी ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी इसका आप आगे देख सकते हैं। अगर आप चैनल में सब्सक्राइब करके उसको नोटिफाई कर लेते हैं तो आपको जैसे ही सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट चलता है, जो भी पार्ट इसमें चलते रहेंगे वीडियोज़, वो आप देखते पाएंगे, जो आपको अपनी जनरल नॉलेज के लिए और स्पेसिफिकली एग्ज़ाम दोनों के लिए हेल्पफुल है। बाकी जो आपके इंटरनल अभी चल रहा है ये ऑनलाइन, इसमें तो हेल्पफुल है ही। It is also helpful for your exams, for your general knowledge. This is also general questions of science, which at higher stages the people, the students take coachings for different exams, different entrance exams. There, because the base is not so good, so they don't know even general science. Then they have to take many coachings, many different types of tuitions, different types of classes for simple general science which is of 10th level. Because in many entrance now the whole situation is competitive. The seats are less, the jobs are less, the positions are less, but people are more, population of our country is more. So you should prepare yourself from the lower classes itself. Now 10th is your very important class. The 10th mark sheet is always asked for in everywhere, that is on up to marks. But your general knowledge should also be very good so that you can compete with other students. Okay, then this is also for your general knowledge. So see carefully, and answer you can get from anything, from internet or anything, but explanation, if the concept building process is happening in your mind, you train your brain to grasp the concepts which will last forever in your mind, in your brain, if the concept is clear. So watch the earlier videos also I have made, and then I will explain the reasons on earlier, based on earlier videos also in these answers. If I have to answer these questions, then it will take only 10 minutes if only I mark the answers. Answers can be easily, you can easily see the answers from internet by googling them. But what is the reason, what is the concept, that will be something difficult. In easy language, if the concept is built in your mind and you make a habit of building a concept in your mind for the things, then all things will be easy. Now science will become easy. I will also give you some things for maths in my coming videos whenever I get time. So that concept of formulas you have don't to remember. You don't have to remember, memorize, wrote, only concepts. If you build concepts in mind, you will never forget anything and you can explain more things. But if you only see the answers without any explanations, you only wrote the answers, you only मतलब रट्टा लगा लेते हो आंसर्स को, तो उसका आपको चाहे आप 50,000 आंसर भी याद कर लोगे तो भी आप उसको भूल जाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो अभी देखिए आप, इसमें पहला क्वेश्चन है,
ऑर्गेनेली इज यूज्ड एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, होना तो नहीं चाहिए। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं पहले वाले, पुरानी चीज़ें आपने अगर देखी हों तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजन में अगर पढ़ते हो तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे सोचेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपका है, दैट इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। वहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो पावर हाउस ऑफ, वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। पावर का मतलब है एनर्जी बनाना, पावर एनर्जी से आती है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे एनर्जी और पावर कहाँ बनती है? पावर हाउस में, बिजली घर में। तो ये ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस वहीं होगी, यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होंगे। वो ग्रीन पार्ट्स आपने पढ़ा है, पुराने वीडियोस आप देख लीजिए या आपने पीछे की वर्कशीट्स भी पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा ग्रीन कलर जो आता है, आपने पढ़े थे कलर देने वाले क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल थे, प्लास्टिड्स में हमने पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक छोटा वो चीज़ पाई थी क्लोरोफिल, जो कि आपने फोटोसिंथेसिस, जब भी आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल नेसेसरी चीज़ है, जो एनर्जी को, सनलाइट को उसमें स्टोर कर सकती है प्लांट के अंदर लीव्स के थ्रू, क्लोरोफिल। तो दैट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो जब क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं तो लाइट तो है, लीव्स भी हैं। फोटोसिंथेसिस हम कब होगी? जब उस ग्रीन में क्यों हो? फिर तो फोटोसिंथेसिस आपके स्टेम हर चीज़ कर सके, खाली लीव्स में फोटोसिंथेसिस क्यों होती है? तो छोटे मोटे और पार्ट्स में जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल होना है तो क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। गोल्गी बॉडीज़ में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता है, यही आपको अगर पता हो तो आप गलती नहीं करोगे कि ये तो पैकेजिंग के काम आती है, आपने देखा था पिछले वीडियोज़ में। साइटोप्लाज्म, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एक जैसा लगे आपको। साइटोप्लाज्म तो एक लिक्विड है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स डिजोल्व रहती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, दे तो डायरेक्ट आंसर भी सकता हूँ, इसलिए वीडियो तो मैं 10 मिनट में भी आंसर सारे दे सकता हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है आप जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस साथ आप में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन। इसलिए ये दो पार्ट्स में बनाऊंगा इनका वीडियो। ट्रिप्सिन आपका एंजाइम, आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना चाहिए। पेप्सिन में भी इन है, ट्रिप्सिन में भी इन है, और प्रोटीन में भी इन है लास्ट में। इन 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 तो किसको पचाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे? पेप्सिन और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन। समझ आ गई आपको बात? पेप्सिन और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन। क्या क्या डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ा था हमने? डाइजेस्ट सिस्टम में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, मेन जो आपके हैं प्रोटीन और फैट्स। तो ट्रिप्सिन का एक्शन किस पे होगा, पेप्सिन का एक्शन किस पे होगा? जब आएगा प्रोटीन। ये आप समझ रहे हैं? तो इन इन इन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, प्रोटीन, ऐसे याद करना है आपको। पहले आपका कौन सा एंजाइम आता है? ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, पेप्सिन का फंक्शन आया हुआ था, तो इसलिए ये भी आपका उसके लिए भी। और आपको अगर इसको वैसे रिमेंबर करना है तो वो भी आप रिमेंबर करोगे। फंक्शन ऑफ एंजाइम, पेप्सिन किस पे आएगा या ट्रिप्सिन किस पे आएगा? तो वो होगा आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब पेप्सिन आपका पहले होता है, बाद में नीचे में क्या आता है? ट्रिप्सिन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा आपको ट्रिप्सिन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन है वो किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को। इन इनसे याद रखना, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कहाँ पे मिलता है ये? डाइजेशन ऑफ
प्रोटीन्स, वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये कहाँ मिलता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन भी होता है। पेप्सिन आपका जो है वो आपने देखा था स्टमक में, फिर उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कहाँ पे फाइनल डाइजेशन कहाँ होती है ये भी याद रखना है आपको, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेज आते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेज एंड बाइल जूसेज, तो उनमें ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। इन प्रोटीन पेप्सिन ट्रिप्सिन, ये याद रखो ऐसे, तो आपको ये याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन अक्कर्स इन, मेनली ईस्ट में होती है, लेकिन बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया हैं जो इनमें एनारोबिक होती है, और ह्यूमन मसल्स में तब होती है जब आपकी ऑक्सीजन कम हो जाए तो ये डायरेक्टली ग्लूकोज को पचाना शुरू कर देती हैं। तो इसमें आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव, चारों में होती है। में नॉर्मली होती है ईस्ट में, लेकिन जब कम हो, मेनली किस में होगी? ईस्ट में। लेकिन जब आपके मसल्स में भी कभी कभी होती है, ह्यूमन मसल में, जब ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तब। और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और फाउल स्मेलिंग गैस बनाते हैं, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, जो सीवर में तो उसको डिकम्पोज करते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तो मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अच्छी तरह देख लीजिए, एक्सक्रीशन समझ जाएंगे आप अच्छी तरह, एक्सक्रीशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट बोमेन कैप्सूल नहीं है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो वर्कशीट का, तो बोमेन कैप्सूल तो एक नेफ्रॉन का छोटा पार्ट है। न्यूरॉन, किडनी से न्यूरॉन का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम में, न्यूरॉन तो हर जगह जुड़े हैं पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं आएगा कुछ। किडनी जो है या नेफ्रॉन, तो आपको ये फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बताना है इसमें, ये ध्यान रखना। आपको एक था, आपको इससे पहले क्वेश्चन था आपका जो हमने वर्कशीट में कराया था, वो ध्यान रखना कि किसका है। सीधी सीधी बात है कि इसमें आपका बोमेन्स कैप्सूल तो नेफ्रॉन का एक छोटा हिस्सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का नहीं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर आप जाएंगे उसके आपने अलग अलग ऑर्गन्स पढ़े थे। इसमें आपका आ जाएगा इसमें नेफ्रॉन, ये किडनी का ही फंक्शन यूनिट है। फंक्शन कौन करता है किडनी के अंदर? एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी मेन है जो शांति है, लेकिन किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट कौन सा है? नेफ्रॉन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेफ्रॉन। द ब्लड वेसल्स विच आर हेल्पफुल इन स्टॉपिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी, आरबीसी का फंक्शन। मैं एक एक ऐसे नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आंसर बोल दिया, डायरेक्ट आंसर तो मैं 1 सेकंड में बोल दूँ, तो उसका बेनिफिट तुम्हें तभी है जब आप उसको कॉन्सेप्ट से समझो। ऐसे तो आप नेट पे कहीं से भी ढूंढ सकते हैं आंसर, और आपको वैसे भी आते होंगे तो उससे भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जो आंसर समझने हैं वो डिटेल में अच्छी तरह समझने हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना होगी। तो आरबीसी तो आपके होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, कार्ब सेल्स, वो तो आपका ऑक्सीजन कैरी करने के मेनली काम आते हैं। डब्ल्यूबीसी आपकी डिसीज़ फ़ौरन उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो कौन करता है? जो उसको रोकता है, ब्लड का थक्का बनाता है, ब्लड को एक जगह रोक देता है, वो है प्लेटलेट, जो उसको ब्लॉक करके इसको वहाँ से, जहाँ से ब्लड को लॉस को कम करते हैं। तो ये प्लेटलेट आ गए। लिम्फ आपने पढ़ा होगा, ब्लड के, जब आपने ब्लड वाला आपको पढ़ाया है, नहीं तो आप वीडियो द्वारा देख लीजिए उसको, जब आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए थे उसमें हमने लिम्फ भी पढ़ा था। लिम्फ इज सिमिलर टू व्हाट? ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो लिम्फ जो था प्लाज्मा के सिमिलर था, प्लाज्मा जैसा था, जैसे आपका प्लाज्मा है वैसे ही लिम्फ वैसा ही एक
पार्ट है जो इंटरसेलुलर मसल्स में चला जाता था, इंटरसेलुलर स्पेसिस में चला जाता था सॉरी। तो आप उसमें पढ़ी याद कर लीजिए इंटरसेलुलर स्पेस वाला। तो लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट इज डैश। कलर क्या होता है लिम्फ का? जैसे प्लाज्मा कलर येलो होता है, तो लिम्फ का कलर कैसा होता है ये आपकी चॉइस में आएगा। कलर ऑफ लिम्फ इज, ये भी आपको ध्यान से पिछले वीडियोस और वर्कशीट्स के वीडियोस देखने हैं, तो उससे आप ये बता सकते हैं आराम से, अगर आप ध्यान से उन चीज़ों को देखते हैं। देखो रेगुलर ही करना पड़ेगा, एकदम से आप करोगे कोई चीज़ तो आपको नहीं समझ आएगी। तो लिम्फ का कलर आपने पढ़ा था उसमें, वाइट। कॉन्टेन्स लेस, क्या कम होता है उसमें प्लाज्मा के कंपैरिजन में? प्रोटीन। लिम्फ के अंदर उतना प्रोटीन नहीं होता, ये थोड़ा वाटर जैसा होता है। तो ये आपको पता लग गया होगा। क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। व्हाट विल हैपन इफ जाइलम ऑफ प्लांट इज रिमूव। जाइलम आपको पढ़ाया गया था जब मैंने प्लांट वाला भी पढ़ाया, उसमें प्लांट का रेस्पिरेटरी वो सिस्टम आपका कि कैसे उसमें सर्कुलेट ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें आपको पढ़ाया था। नीचे जड़ें हैं, जब छोटे प्लांट है उसमें तो डिफ्यूजन होता है, लेकिन बड़े प्लांट जो हैं उनमें ऊपर लीव्स ऊपर हैं आपके, अगर वहाँ फ्लोएम का और जाइलम का पढ़ा था हमने। जाइलम जो है ऐसे डेड टिश्यूज़ होते हैं, तो ऊपर ऊपर ऐसे सारे जुड़े हुए हैं, यहाँ से पानी और मिनरल्स लेके जाना है इनको लीव्स में, जहाँ पे ये लीव्स में खाना बनेगा। और ये लीव्स जो हैं यहाँ से फ्लोएम नीचे भी लेके जाता है खाने को, ऊपर भी लेके जाता है। जाइलम सिर्फ ऊपर लेके आते हैं अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुँचाना। अगर वाटर और मिनरल्स जाइलम हम हटा दें यहाँ से, अगर मैं यहाँ से जाइलम हटा दूँ तो इतनी हाइट तक जाने के लिए प्लांट के अंदर कोई वो नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ चला जाए कुछ, तो कुछ भी नहीं जाएगा, कोई मिनरल्स और वाटर नहीं जाएगा। जब मिनरल्स और वाटर नहीं जाएंगे तो ये लीव्स को खाना नहीं मिलेगा और लीव्स जो हैं विल्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं विल्टिंग। विल्टिंग मतलब सूख के जैसे पत्ते गिरते हैं, आपने देखा होगा पेड़ों से पत्ते गिर गए सूख कर, तो ट्री से जो लीव्स गिर जाते हैं सूख के, तो वही होगा। जो ग्रीन कलर के आपके लीव्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा शो कर दूँ ग्रीन कलर के लीव्स। अगर ये कलर होता आपका, ये आपके ग्रीन कलर के लीव्स, जब इनको नहीं मिलेगा पानी, जड़ों से जाएगा नहीं, ऊपर ही नहीं जाएगा, तो ये सूखना शुरू हो जाएंगे आपके लीव्स, पेड़ों के लीव्स। तो सूखने के बाद इनका कलर जो बन जाएगा बेचारे, वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर हो जाएगा, येलो हो जाते हैं लीव्स, आपने देखा होगा। तो ये लीव्स बेचारा ऐसा हो जाएगा। ऐसा होना मतलब सूख गया लीव, और ये सूख के पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे, और जब पत्ते ही नहीं होंगे तो पेड़ क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? लीव्स विल नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स। लीव्स को वाटर और मिनरल्स नहीं मिलेंगे। जब लीव्स को वाटर और मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? लीव प्लांट विल, इट विल नॉट मेक फूड, they will not be able to make food, लीव्स स्टार्ट, उसको बोलते हैं हम सूख के गिरने को विल्टिंग, सूखना शुरू हो जाएंगे। एंड खाली लीव्स नहीं, प्लांट विल डाई। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जाइलम को निकालने पे धीरे धीरे जब लीव्स को कुछ नहीं मिलेगा, खाना नहीं बनेगा, तो सारे प्लांट्स भी डाई करना शुरू हो जाएंगे। अगर घर में मैं आटा सब्जी दाल नहीं लाऊंगा तो खाना बनेगा ही नहीं, कैसे होगा? द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू हार्ट। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, आपको समझाया गया था तो अच्छी तरह कि भैया जो चीज़ जो हार्ट के अंदर चीज़, हार्ट के अंदर जो लाएंगे
चाहे कहीं से भी लाएं ब्लड, जो हार्ट के अंदर लाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, ये ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड कहाँ से आ गया हार्ट के अंदर, हार्ट से तो जाना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स तो ऑक्सीजन, लंग्स से तो आएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, नहीं जी ये कैसे हो गया। सिंपल सी बात है, पल्मनरी तो होगा जो लंग्स से आ रहा है, तो पल्मनरी। दूसरा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ब्लड तो आर्टरी में होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, आपको वहाँ भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। लेके कौन आएंगी, वेन्स, चाहे कहीं से भी लेके आएँ, ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड हो डीऑक्सीजनेटेड हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन लंग्स से तो ऑक्सीजनेटेड आएगा। लेकिन जो लंग्स के अंदर लाती हैं वो वेन्स हैं, जो लंग्स से बाहर लेके आती हैं वो आर्टरीज हैं, ये ध्यान रखना। अब ये पल्मनरी जो है इसलिए स्पेशल हो जाती हैं, पल्मनरी में हमें लगता है उल्टा हो रहा है कि बाकी सबसे तो डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है वेन्स में, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। वेन्स वो हैं जो बाकी ऑर्गन, चाहे वो लंग्स हो चाहे कोई भी ऑर्गन है, वहाँ से ब्लड लेके आती हैं हार्ट में। अब बाकी सब में क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड तो डीऑक्सीजनेटेड लाएंगी, और लंग्स से कौन सा आएगा ऑक्सीजनेटेड तो ऑक्सीजनेटेड लाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पल्मनरी आर्टरी है वो, पल्मनरी वेन नॉट आर्टरी। ऐसी अगर उल्टा पूछा जाए कि लंग हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके कौन जाता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में घूमता है, लेकिन वो अदर ऑर्गन्स में, जब लंग्स में ले जा रहे हैं, हार्ट से जो भी निकलेगा ब्लड जाएगा किसी भी पार्ट में, वो लेके जाएंगी आर्टरी, और जो आएगा वो वेन्स। पल्मनरी हम इसलिए लिख रहे हैं कि नॉर्मली आर्टरीज और वेन्स बाकी ऑर्गन्स में ले जाती हैं, तो वहाँ आर्टरीज ले आती हैं ऑक्सीजनेटेड और वेन्स ले आती हैं डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जो लंग्स के साथ जुड़ी हैं वहाँ उल्टा हो जाता है। उल्टा नहीं है, बात तो वही है कि लेके तो अदर पार्ट्स में जा रही हैं, आर्टरीज अदर पार्ट्स में लेके जा रही हैं, वेन्स लेके आ रही हैं, लेकिन लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से और डीऑक्सीजनेटेड लंग के अंदर जाता है, तो इसलिए उल्टा दिखता है हमें। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ आएगा पल्मनरी वेन। वेन है जो हार्ट्स में लेके आएगी ब्लड, कहीं से भी जो भी लेके आएगी। नेक्स्ट है आपका स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, ये भी ठीक है। बोथ आर ए एंड आर ट्रू, पर ये कोई रीज़न थोड़ी है उसका कि स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। बोथ ए एंड आर ट्रू, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, पर इसका कोई रीज़न नहीं है कि स्टोमेटा, कोई रीज़न नहीं है ये। आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है लेकिन असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई। ये नहीं पूछा कि कहाँ से गैस जाती है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बोथ ए आर एंड ट्रू बट आर इज़ नॉट, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी कोई। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको इधर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो आप सेकंड पार्ट के वीडियो के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, एक्सप्लेन तो करना ही है, बिना एक्सप्लेन के तो कोई फ़ायदा नहीं इसको पढ़ने का। थैंक यू।